Hello everyone, my name is Kitty Tripathi and I am faculty of Electrical Engineering Department, BBD NIIT Lucknow. We are studying control systems unit number 5 today, which is compensating networks. So before beginning with this unit, let me explain what are our objectives when we study this unit and what prerequisites are required for this unit. So अगर आप AKTU करिकुलम KEE 502 की बात करें तो जो मॉड्यूल नंबर 5 विच इज़ कॉल्ड हियर यूनिट नंबर 5 वो दो सेगमेंट में डिवाइडेड है. द फर्स्ट सेगमेंट इज़ about compensation designing and the second segment is about state variable analysis. Today we will be discussing compensating designs. So this segment has certain outcomes. When we study completely this unit, then we will be able to achieve these 4 points which are written. First is, in this segment we will be studying what are different types of compensator. Second thing which we will study in this segment is, we will analyze the design performance of the control system by the help of Bode plot method. We will also study the design studying the performances of a control system using root locus method. Not only this, we will also discuss the designs of phase lead, phase lag and lead lag network. For this, we require certain prerequisites, meaning things which we need to know to begin this unit. So we should be completely aware of frequency response study before studying this unit. We should also be completely aware of what Bode plot is as well as what root locus plot is. Since these things are already covered in previous modules of this subject, so we are in a position to start this unit. So let's begin. Compensating networks. What basically is compensating network? Why are we using it? There are certain types of questions arising. Why are we studying compensating network? What are these compensating networks? Where these networks are in use? How are we using it? And stuff like that. Okay, so let's begin. Compensating network के बारे में हम लोग क्या कह रहे हैं कि किसी भी कंट्रोल सिस्टम में हम एक नेटवर्क को इंट्रोड्यूस करते हैं which is an additional set of elements containing various dynamic elements forms a circuit. This circuit is introduced in existing control systems. Why will we introduce this system? क्यों हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं किसी एक्स्ट्रा नेटवर्क को अपने कंट्रोल सिस्टम की यूनिट में? इसलिए कर रहे हैं कि हम क्या कर सकें, उसकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकें. ठीक है, ताकि क्या कर सकें, हम जो भी हमारा डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन है हम उन्हें मीट आउट कर सकें. द पॉइंट इज़ व्हाट शुड बी आवर डिज़ाइन स्पेसिफिकेशंस. किन चीज़ों को हम डिज़ाइन स्पेसिफिकेशंस कहेंगे? तो इन कंट्रोल सिस्टम्स वी आर जनरली स्टडिंग टू थिंग्स. फर्स्ट इज स्टेबिलिटी. We are very much bothered about stability and very much bothered about error existing in the system as well. ठीक है, मतलब जब हम डिज़ाइन स्पेसिफिकेशंस को मीट करने की बात करते हैं तो हम ये इन दोनों स्पेसिफिकेशंस को मीट करने की बात कर रहे हैं. एरर स्पेसिफिकेशन शुड ऑल्सो बी मेट, एट द सेम टाइम स्टेबिलिटी शुड ऑल्सो बी मेट. इशू क्या है इसमें? तो हमें एक्स्ट्रा सर्किटरी की क्या ज़रूरत पड़ गई? हमने एरर एनालिसिस पूरी टाइम डोमेन एनालिसिस में कर रखी है, विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस मॉड्यूल्स. स्टेबिलिटी एनालिसिस भी हमने फ्रीक्वेंसी डोमेन को यूज़ कर करी थी, विच वी हैव ऑल्सो अगेन डिस्कस्ड इन यूनिट नंबर 4 विच इज़ जस्ट प्रीवियस मॉड्यूल. सो जब हमने इन सेगमेंट्स को डिस्कस कर लिया है, हमने एरर रिड्यूस करना आता है किसी कंट्रोल सिस्टम का, हमें स्टेबिलिटी आइडेंटिफाई करना आता है, स्टेबिलिटी चेक करना आता है, स्टेबिलिटी, तो फिर हमारे साथ प्रॉब्लम क्या हो रही है? हमें क्यों एक्स्ट्रा सर्किटरी की ज़रूरत पड़ने लग गई किसी कंट्रोल सिस्टम में? सो द प्रॉब्लम हियर इज़ to meet both the specifications all together. That is, let us suppose we have a situation where we have an open loop transfer function, GS as given as something. It is, let's assume it is a type 1 system. Okay, if it is a type 1 system and we have a unity feedback, ठीक है, हमें सिस्टम को बोला जाए कि बताओ it is having a system gain as K. We write ना K upon S into S plus 1, let us suppose it is S plus 2,
ऐसा कोई सिस्टम है हमारे पास जिसका ओपन लूप गेन ऐसा वैल्यू है, ठीक है। हमसे पूछा जाए कि व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द एरर इज लीस्ट, ओके। ऑन द अदर हैंड व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम lies in the stable range of its operation, okay. What will happen? What are we going to do? We'll solve two things. First is we'll do the error analysis. Now we have certain requirements for error. Let us suppose we are taking standard signal as what you call as anything you can take. Let's suppose it is ramp signal, ठीक है. What we will obtain from here? Velocity error constant, right, and from that we will be able to get steady state error which is equal to 1 upon kV, right. Now let us say we are given a particular condition. For example, we are being given that error is 0.1. It is our requirement that error should be 0.1, right. So if we have this error as 0.1, we can find the value of kV, ठीक है, 1 upon 0.1 which is 10. Now we are aware that kV can be written as limit s tending to 0 s into HSGS, right. We have already discussed this in time domain analysis मॉड्यूल नंबर 2, ठीक है. यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, k का वैल्यू. We have obtained it, right. For the same system, what do we do next? We define the stability now, कि what is the range of k where system should be stable. The easiest thing we can do is Routh-Hurwitz criteria. Use it. Use Routh-Harvey array 1 plus HSGS is equal to 0. ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन यूज करके हम लोग क्या करें, Routh-Harvey बना दें और वहाँ से क्या करें, फर्स्ट कॉलम में देयर शुड नॉट बी एनी साइन चेंज. वी डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ k, राइट. उस k की वैल्यू को निकाल कर हमें यहाँ पर अगर हम कंपेयर करने की कोशिश करें तो हमें दो चीज़ें दिखती हैं. फर्स्ट इज दिस वैल्यू ऑफ k, द सिस्टम गेन is very different in error as well as in stability. मतलब एरर के लिए वैल्यू कुछ और आता है और अगर हम एरर को एडजस्ट करते हैं कि हमें एरर मिनिमम 0.1 चाहिए था तो हम k की पर्टिकुलर वैल्यू निकालते हैं. उस वैल्यू को अगर चेक करते हैं कि वो स्टेबिलिटी रेंज में है तो वो नहीं मिलेगी. यू कैन ट्राई इट विथ एनी रैंडम क्वेश्चन यू वांट टू एंड यू विल गेट द सेम काइंड ऑफ थिंग. सो द प्रॉब्लम इज टू मीट ऑल दिस डिजाइन स्पेसिफिकेशन. सो व्हाट शुड वी डू? So what is done is we introduce a certain element forming a particular circuit which is called as compensation network. What we will do? We will meet the design specification of error and then we will try to compensate it कि क्या unstable क्यों आ रहा है और हम इसे stable कैसे करें to improve the relative stability of the system. That is our main objective and hence we are using this compensating network. अब यहाँ पर इस जगह पर आपको दो तरह के सर्किट दिख रहे हैं. एक में देखो हम लोगों ने क्या लिखा है, दिस इज कंपनसेटिंग एलिमेंट विच इज इंट्रोड्यूस्ड इन कैस्केडेड विथ द ओपन लूप गेन. हियर व्हाट इज हैपनिंग, इट इज कनेक्टेड इन फीडबैक विद द ओपन लूप गेन ऑफ द सिस्टम. सो वी कैन डू बोथ द थिंग्स ऑल्सो टुगेदर, separately also. So when we talk about designing of compensation network, they are basically of three category. First is series compensation we call it as, जिसमें क्या होता है, जो भी हमारा compensating element होता है वो कहाँ introduce हुआ है, open loop gain के साथ series में और cascaded position, ठीक है. Second thing is this portion, it is called as parallel compensation. It is also known as feedback compensation. Hence why feedback? Because it is been given as a feedback to the open loop gain of the system, ठीक है. तो compensating network जो introduce किया हम लोगों ने वो कहाँ किया, feedback में. किसके feedback में, open loop gain के. Hence it is called as either a parallel compensation or feedback compensation. The third thing, we combine both which is called as series parallel combination, which is series parallel compensation. What is series parallel compensation? It is also called as load compensation. यहाँ क्या है, दो कंपनसेटर यूज हो रहे हैं. कंपनसेटर नंबर 1 which is in series, कंपनसेटर नंबर 2 which is in parallel with the open loop gain, ठीक है, या in feedback with this.
ठीक है. So these are the types of compensating network. The question arises, what is our basic requirement on a open loop frequency response? So we have three basic requirements here. See here. And this basic requirement is defined with respect to the frequency. हम लोग क्या कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी की रेंज डिवाइड कर रहे हैं. इन डिवाइडेड रेंज में हम डिसाइड करते हैं कि हमारा जो भी ओपन लूप फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है उसका क्या रिक्वायरमेंट है. तो हम लोगों ने बेसिकली थ्री रेंज डिफाइन की. वन इज लो फ्रीक्वेंसी रेंज, अदर इज मीडियम फ्रीक्वेंसी रेंज एंड लास्टली हाई फ्रीक्वेंसी रेंज. लो फ्रीक्वेंसी रेंज के साथ हमें हमारे पास क्या इश्यूज हैं, क्या चाहते हैं हम. जब कंपनसेशन डिज़ाइन करते हैं तो हम क्या चाह रहे हैं लो फ्रीक्वेंसी सिस्टम्स में. हम चाहते हैं जब व्हेन देयर इज लो फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ द सिस्टम, देन व्हाट शुड हैपन, द गेन, जिसको के लिख रहे थे ना, सिस्टम गेन के, इट शुड हैव अ वेरी हाई वैल्यू. इट नीड्स टू गिव हाई वैल्यू. ठीक है. वाई? टू मेंटेन द एरर कांस्टेंट. ठीक है. What about medium frequency ranges? In the middle case, what should happen is we need to have larger value of gain margin and phase margin. And what at the case of high frequency? In high frequency, what we need is to adjust the attenuation as fast as we can. ठीक है. क्यों adjust as fast as we can? क्यों हमें इतना fast चाहिए? Such that we could reduce or minimize the effect of noise in this system. See here, the more the attenuation is reduced quickly, the quicker is the removal of the noise from the system. So these are the three basic requirements of an open loop frequency response. ठीक है. तो इन थ्री रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए जो नेटवर्क डिज़ाइन किया जाता है वो तीन तरह का होता है. The first is lead network, second is lag compensating network, and third is the combination of both lead and lag. ठीक है. What is the basics behind this lead network and lag network? The basic behind lead network is where we use lead network. तो हम लोग लीड नेटवर्क बेसिकली वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ हमको सिस्टम की ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स को इम्प्रूव करना होता है. ठीक है. जहाँ हमें सिस्टम की ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स को इम्प्रूव करना होता है वहाँ बेसिकली हम लोग लीड नेटवर्क यूज़ करते हैं. लैग का क्या काम है, लैग नेटवर्क कहाँ यूज़ कर रहे हैं, जहाँ हमें स्टेडी स्टेट परफॉर्मेंसेस को ध्यान देना होता है किसी भी सिस्टम के. ठीक है. स्पेशली विद द हेल्प ऑफ द फैक्टर विच इज सेटलिंग टाइम. ठीक है. And when we require it for both transient and steady state performances, we use the combination of lead network and lag network. ठीक है. उससे पहले कि हम आगे बढ़ें कि लीड नेटवर्क क्या होता है, लैग नेटवर्क क्या होता है, देयर इज सर्टेन इश्यूज जो हमें क्लैरिफाई करना चाहिए. अभी हमने फर्स्ट स्लाइड में क्या डिस्कस किया कि कंपनसेशन हम लोग या तो जो नेटवर्क ऐड कर रहे हैं या तो सीरीज में ऐड कर रहे हैं या पैरेलल में ऐड कर रहे हैं या कॉम्बिनेशन में. सो व्हाट इज अ चॉइस, हाउ डू वी डिसाइड कि कब सीरीज में ऐड करेंगे, कब पैरेलल में करना है, कब कॉम्बिनेशन में करना है, किन बातों पर ध्यान में रखकर ये किया जाता है. सो लेट्स सी, वी हैव 5 पॉइंट्स, basic points. The first basic point is the nature of signal. Means when we are using unit step or unit ramp or impulse signal or sinusoidal signal and various other, because we are discussing three major things here, so hence we are discussing the nature of the signal. टाइम डोमेन में हमने यही तीन बेसिक सिग्नल, स्टैंडर्ड इनपुट सिग्नल्स को देखा था. तो बेसिकली इन्हीं थ्री के अकॉर्डिंगली हम डिसाइड करते हैं कि कहाँ सीरीज में प्लेस करना है या शंट में प्लेस करना है. द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज पावर लेवल. वी डिसाइड कि हमारे पास पावर लेवल क्या होनी चाहिए, कितनी पावर लेवल अवेलेबल है यूज़ करने के लिए, उसके हिसाब से डिसाइड करते हैं कि सीरीज में यूज़ करना है, शंट में करना है, कॉम्बिनेशन में करना है. थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज द अवेलेबिलिटी ऑफ कंपोनेंट्स. कितने कंपोनेंट्स अवेलेबल हैं हमें यूटिलाइज करने के लिए. ठीक है. नेक्स्ट इज इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द डिजाइनर्स एक्सपीरियंस, हाउ मच यू आर अवेयर ऑफ डिजाइनिंग द सिस्टम, what you know by your previous experience which should be better, which should be more effective.
in one go, that is all dependent upon the designer's experience who is designing this compensating network. And lastly, but very important factor is economic consideration, which is more cheaper as compared to the other one. ठीक है. So these are the things जहाँ से हम ये decide करते हैं कि सीरीज में जुड़ेगा या पैरेलल में जुड़ेगा. हमें डिसाइड हो गया, हमने ज्वाइन कर लिया. What next? What do we do next? So what do we do? We have certain set of properties या certain set of conditions. हमारे पास कुछ conditions हैं जो हम ये decide करते हैं या define करते हैं कि हम क्या करें ऐसा जो ये हमारा नेटवर्क किस चीज़ के कैपेबल होना चाहिए. मीनिंग हमारे नेटवर्क की कैपेबिलिटी या हमारे नेटवर्क की प्रॉपर्टी क्या है जो हम कंपनसेटिंग नेटवर्क ऐड कर रहे हैं किसी कंट्रोल सिस्टम में. तो व्हाट इज द बेसिक प्रॉपर्टी? फर्स्ट बेसिक प्रॉपर्टी इज दिस सिस्टम नीड्स टू बी स्टेबल सिस्टम. हमारा ऑब्जेक्टिव ही फेल हो जाएगा अगर ये सिस्टम ही अनस्टेबल हुआ तो दिस शुड बी अ स्टेबल सिस्टम, दैट इज फॉर श्योर. ठीक है. The second thing is the control output should follow change in reference input without any oscillation. This is very important. अगर हम compensating network किसी existing control system में add करते हैं और उस add करने से जब भी हम control output में change चाह रहे हैं, मान लो हमारी कुछ value आई, now we want something else, and when we are achieving that the other value, what is happening? It is giving oscillations or peak overshoot is increased or decrease का तो it is better, but peak overshoot is increasing. So the most important thing here is कि हम जब भी जो हमारा कंट्रोल सिस्टम में जब हम आउटपुट को कंट्रोल कर रहे हैं, यानी हम आउटपुट को इनपुट जो सिग्नल रेफरेंस सिग्नल दे रहे हैं उसको फॉलो करा रहे हैं, तो वो फॉलो करते समय ऑसिलेशंस लीस्ट हों या ना हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो हमारे नेटवर्क को फुलफिल करनी चाहिए. थर्ड थिंग, वी ऑल्सो नीड टू वेरीफाई कि जो भी हम कंपनसेटिंग नेटवर्क ऐड कर रहे हैं सिस्टम में, इट शुड बी लेस सेंसिटिव टू चेंज इन पैरामीटर्स. द मोर इट विल बी, द डिफिकल्ट इट विल बी टू डिजाइन अ अप्रोप्रिएट सिस्टम फॉर मीटिंग आवर डिजाइन स्पेसिफिकेशंस. ठीक है. हेंस इट शुड बी लेसर सेंसिटिव टू चेंज इन पैरामीटर्स. नेक्स्ट थिंग इज undesirable disturbances. It should be able to reduce the effect of undesirable disturbances like noise. Suddenly अगर सिस्टम में noise, जैसे मान लो हाई frequency signal है and there is noise which is embedded along with the signal, what should we able to, our system should be able to do is it should understand that this particular part is noise and hence it should be eliminated from the system. That means जो भी एक्स्ट्रा डिस्टर्बिंग सिग्नल्स आ रहा है उनको रिड्यूस करने की कैपेसिटी हमारे कंपनसेटिंग नेटवर्क में होनी चाहिए. एंड द अदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज एरर. वी शुड हैव मिनिमाइज्ड एरर इन द केस ऑफ कंपनसेटिंग नेटवर्क्स. राइट. नाउ लेट्स बिगिन विद द डिजाइन एस्पेक्ट. फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, लेट्स बिगिन विद लीड कंपनसेटर. जब हम लीड कंपनसेटर की बात करते हैं तो हमने क्या कहा था? देयर शुड बी अ सर्टेन network combination of certain elements. तो जो standard combination है is represented by this diagram which is shown here. See here, it consists of two impedance circuit. One is having, let us say it is Z1 and other is, let us say it is Z2. We have two circuitry, two impedance set. ठीक है. One impedance set is having resistance and capacitor in parallel, other is having resistance only. Now what do we have to do from this network? We have to solve and obtain the value of transfer function from here. We can easily do that. अगर हम इसका Z1 का वैल्यू निकालने की कोशिश करें तो what can we write? It is 1 upon CS into R1 upon 1 upon CS plus R1, right? And that Z2 is simply nothing but it is equal to R2. ठीक है. अब हम इनपुट साइड और आउटपुट साइड से केवल लिखें और ट्रांसफर फंक्शन निकालने की कोशिश करें, व्हाट डू विल वी गेट? अगर हम इनपुट साइड पे केवल लिखते हैं तो ई इनपुट एस इज इक्वल टू, लेट अस सपोज कि इसमें जो करंट फ्लो हो रही है वो आई है. सिंस वी आर यूजिंग द लैप्लासियन डोमेन टू सॉल्व इट, वी आर टेकिंग एस लैप्लासियन डोमेन, राइट? व्हाट वी विल राइट हियर? Z1 प्लस Z2 इंटू आई एस. Z1 इज हमारा R1 अपॉन सी एस अपॉन, ये हो गया आपका सी एस शुड बी कैंसल्ड इसलिए मैं 1 एक ही बार लिख रही हूँ, R1
सी एस, ठीक है, इंटू आई एस. वट अबाउट आउटपुट? ई आउटपुट एस. अगर आउटपुट साइड पे केवीएल या सेकेंड पोर्ट पे केवीएल लिखने की कोशिश करें तो इट विल बी नथिंग बट R2 इंटू आई एस. नाउ वट डू? We divide both these equations. What we will get? E output S upon E input S is which is the transfer function of the system. What we will get? R2 upon R1 plus I missed out R2 here plus R2. ठीक है, it is R1 upon 1 plus R1 CS प्लस R2. ठीक है, वी विल सिंप्लीफाई इट. ठीक है, इसके बाद वी विल अज्यूम टू फैक्टर्स. फर्स्ट इज वी विल टेक दिस टर्म R2 अपॉन R1 प्लस R2. ठीक है, इसको हम लोगों ने अल्फा अज्यूम कर लिया सिस्टम में, और इट इज समटाइम्स नोटेड एज A ऑल्सो. ठीक है, सेकेंड थिंग इज T की वैल्यू जो यहाँ पर आपको दिख रही होगी कंपनसेटिंग ट्रांसफर फंक्शन में, विच इज हियर इज R1 इंटू C. ठीक है, what we will do now? Substitute this value of alpha and T in this expression. We will get it same as here. We have one condition here, and that condition is this alpha or A, where whatever we want to write it as, इट शुड बी लेस दैन 1. ठीक है, तो हमारा जो ट्रांसफर फंक्शन निकल कर आता है कंपनसेटर का, वो निकल कर आएगा इस फॉर्मेट में, विच इज अल्फा इंटू 1 प्लस टी एस अपॉन 1 प्लस अल्फा टी एस. नाउ व्हेन वी एनालाइज, हम इस अल्फा को इधर भेज देते हैं. क्यों? क्योंकि दिस इज द फैक्टर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अटेन्यूएशन एंड वी कैन ईजिली हैंडल इट. We are concerned about this portion, so we can write it as 1 plus Ts upon 1 plus alpha Ts. ठीक है, this is our circuitry of we have sent 1 upon alpha here, so we can write 1 upon alpha. This 1 upon alpha, since it is a factor which is responsible for attenuation, and hence we can utilize or एक्ट अकॉर्डिंगली लेटर ऑन. जो हमारा कंसर्न है वो ये पोर्शन है. ठीक है, वी कैन से देयर इज अ 1 पोल एंड 1 जीरो सिस्टम. एक पोल और एक जीरो दिख रहा है सिस्टम में, विच इज -1 अपॉन टी. व्हाट आर द पोल्स एंड जीरोस ऑफ द सिस्टम? इट इज -1 अपॉन टी. दिस इज जीरोस एंड पोल इज एट -1 अपॉन अल्फा टी. ठीक है, हमें जीरोस और पोल्स दिख रहे हैं. हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? इन्हीं जीरोस और इन्हीं पोल्स को डिटरमाइन करना. कैसे करेंगे हम? सबसे पहले तो हमने अटेन्युएशन कांस्टेंट को एक साइड कर दिया, वो 1 अपॉन अल्फा वाला जो फैक्टर आ रहा था, विच विल बी इंट्रोड्यूसिंग इट लेटर. हाँ, अब हमारा ऑब्जेक्टिव है वो अल्फा और टी को डिटरमाइन करना. क्या करें हम इसको यूज करके सॉल्व करेंगे साइनसॉइडल ट्रांसफर फंक्शन के फॉर्मेट में. साइनसॉइडल ट्रांसफर फंक्शन के फॉर्मेट में का मतलब हम जहाँ जहाँ भी एस है वहाँ क्या रख दे? जे ओमेगा. कंपनसेटर के डिज़ाइन में 1 प्लस अल्फा टी अपॉन 1 प्लस ओमेगा टी अपॉन 1 प्लस अल्फा ओमेगा टी, जो एक्सप्रेशन था चेंज हो गया. ठीक है, नाउ दिस इज इन टर्म्स ऑफ एस की जगह क्या किया हम लोगों ने? सिर्फ जे ओमेगा रख दिया है. 1 प्लस एस इंटू टी अपॉन 1 प्लस अल्फा एस इंटू टी था. जहाँ जहाँ एस है वहाँ सिंपली हम लोगों ने क्या किया? जे ओमेगा से सब्स्टिट्यूट कर दिया. नाउ व्हाट हैपेंस इज वी आर यूटिलाइजिंग इट इन फ्रीक्वेंसी डोमेन. ठीक है, हम इसका मैग्नीट्यूड और एंगल का एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं. अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो क्या निकल कर आएगा? √1 प्लस ओमेगा स्क्वायर टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई √1 प्लस ओमेगा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर. दिस इज द मैग्नीट्यूड. And when we talk about angle, it will be tan inverse omega t upon 1 minus tan inverse omega alpha t upon 1. ठीक है, अब हमारे पास मैग्नीट्यूड है और फ्रीक्वेंसी है. क्या बचता है हमारे लिए? हमारे लिए अब बचता है कि इससे हम क्या करें? कोई फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस को फॉर्मेट को यूज़ करते हुए
हम ये वैल्यूज डिटरमाइन करें. कौन सी वैल्यूज? अल्फा एंड टी. फॉर दैट वी विल रिक्वायर any design protocol and a base system. So what we will use is, we use it either by Bode plot or by root locus design. ठीक है. एक चीज की और हमें जरूरत पड़ेगी, which is a frequency called as omega m. What is this frequency? It is the frequency where the phase shift is maximum. तो हम क्या करें maximum करने के लिए? इस टर्म को मैक्सिमा. How will this term be maxima? When the first differentiation is equal to 0 and second differentiation is negative. On solving, we can get the values of omega m. Here it is written as 1 upon t root omega. From here we will be using these terms to determine the value of alpha and t either by using Bode plot or by root locus methodology. जैसे ही हमें ये अल्फा और टी मिल गया, हमें ट्रांसफर फंक्शन मिल जाएगा, तो हमें कंपनसेटर का ट्रांसफर फंक्शन डिजाइन मिल जाएगा. फायदा क्या हो रहा है? इस कंपनसेटर नेटवर्क को हम मल्टीप्लाई कर दें ओरिजिनल सिस्टम से, व्हाट विल हैपन? इट विल बी चेंजिंग द ओरिजिनल सिस्टम इनटू अ न्यू सिस्टम. उससे क्या हो रहा है? उससे जो हमारी डिजाइन स्पेसिफिकेशन जो मीट आउट नहीं हो रही थी, वो मीट आउट हो जाएंगी. एंड दैट इज ऑल अबाउट द बेसिक्स ऑफ compensating designs. In next lecture we will be discussing what is exactly lead network doing when we are using it with Bode plot for designing of a system of a network which will get us the value of alpha and t. That's it for this lecture. Thank you very much.